water drops and forms cloud. This process is called condensation. They fall down as rain, snow or hail. This is called precipitation. Again in rivers, ponds, lakes and ocean. And the same process starts again. That is why it is called a cycle. It keeps going round and round. क्या बनाया बेटा? Good morning, sir. My name is Parvat. I am in 4th class. Good morning, sir. My name is Shams Devanshi. I am in 4th class. Today we are going to explain our model of human respiratory system. The part of respiratory system are nose, mouth, trachea, bronchus, and lungs. Nose. Air enter our body through the nose. Tiny hair, mucus inside the nose clean the air by trapping dust and germs. Mouth. Sometimes air can also enter through the mouth when we breathing. Trachea. The trachea is a long tube that carries air from the to the lung. It is also called windpipe. शाबाश. Divide into two tubes called bronchi. One goes to the right lungs and the bronchus divide into many smaller tubes inside the lungs called bronchioles. These help spread air throughout the lungs. The lungs are the main breathing organ. They take oxygen, remove carbon dioxide. This model shows that how our respiratory system works and helps us to breathe. Without the respiratory system, we cannot live even for a few minutes. Thank you. बहुत बढ़िया. क्या बनाया बेटा? My name is Yashika. I read in 6th class. Today I am going to explain my model based on taproot and fiber root, which are two main types of the root system in plant. Firstly, I am defining roots. Roots are the underground part of the plant in the soil, absorb water, minerals and store food. And now I will explain about taproot. In taproot system, there is one main root are called primary root. Taproot go deep inside the soil. बहुत बढ़िया. Good morning, sir. My name is Pravadakar from class 7. Good morning, sir. My name is Gaurav from class 6. Today we are going to explain of human digestive system. The digestive system helps us to digest the food we eat and gives energy to our body. Main parts of digestive system. Our digestive system has many organs that work together. Mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, anus. The half-digested food goes into the small intestine. Juices from the liver and pancreas help to complete food in small intestine. Large intestine. The remaining undigested food goes into the large intestine where the water is absorbed from it. Anus. Finally, the waste is thrown out of the body through the anus. Thank you. System work from chewing food in the mouth to remove waste from our body. It help our body get the energy and nutrients we need to grow. स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं है. पूरे में से. नगमे बिखेर रही हैं, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही
स्वागत करो इनका, क्योंकि ये हमारी महफिल की जान है, ये हमारी महफिल की जान है। Good morning everyone. It gives me immense pleasure to welcome you all to the annual function of the Sanskar Public School Rajnagar. On behalf of the entire school, I extend a warm welcome to our Honorable Chief Guest, Shri C.L. Thakur ji, Secretary, Bharatiya Janata Party, District Chamba, and Chairman, Hill Modern Group of Institutes. Our guest of honor, Shri Madan Paryal ji, Chairman, Navprabhat Public School, Sirpur. Shri Jiru Ram ji, Shri Sandeep Thakur ji, Shri Rohit Sharma, IT Head, Hill Modern ITI Bhadram. Shri Ajay Kumar, Staff Member, Hill Modern ITI Bhadram. Ex-Pradhan, Shri Shakti Prasad ji, Founder of School, Retired Captain Bhagat Singh Rathore ji, SMC President, Shrimati Nishu Kumari ji, Chairman Sir, Shri Sanjeev Rathore ji, Principal Ma'am, Shrimati Kalpana Rathore ji, invited dignitaries, school, teaching and non-teaching staff, media person, parents and my most beloved students. Today is a very special day for all of us, as we have gathered here to celebrate the achievements and talents of our students. Let's begin the wonderful journey of fun, joy and celebrations. So get ready to enjoy a day filled with colorful performances, inspiring words and beautiful memories. Once again, I welcome you all to our annual function. अब मैं एक बार फिर से आप सभी का आज के इस पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे वार्षिक उत्सव में आप सभी का आना हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। आपकी उपस्थिति से हमारा उत्सव और भी भव्य और यादगार बन गया है। आज का दिन हमारे विद्यालय के लिए गर्व और प्रसन्नता का दिन है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की मेहनत, प्रतिभा और उत्साह आज मंच पर दिखाई देगा। आइए हम सब मिलकर इस कार्यक्रम का आनंद लें और बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। तो अब हम अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के साथ करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्य श्यामलां मातरं, वंदे मातरं, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। Let's welcome our talented girls on stage to present the welcome dance. Please give them a big round of applause. निशानी है, हर दीपक में छुपी एक कहानी है, ज्ञान और शांति की ये निशानी है। आइए दीप प्रज्वलन से करें आरंभ हम, ये तो सभ्यता की प्राचीन निशानी है, ये तो सभ्यता की प्राचीन निशानी है। Now it's time to begin this auspicious event with the lighting of the lamp, which symbolize the removal of darkness and the spreading of wisdom and knowledge. We would like to invite our respected Chief Guest, Shri C.L. Thakur ji, Principal Ma'am, Chairman Sir, and other dignitaries. दीप ज्योति आत्मा
सकते हैं, आप कर सकते हैं। जी मैम सामने देखो ना। सुख साया ब्रह्म ज्योति प्रदीप। मेरे को लगता है ले जाएंगे। सूरज सितारे कहता ये संसार है, ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है, ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। आंगन ये द्वारे सूरज सितारे कहता ये संसार है, ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ज्ञान की देवी माता सरस्वती बुद्धि, विवेक और कला की प्रतीक है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत माँ सरस्वती की वंदना से करना हमारी परंपरा और संस्कृति प्राप्त करने के लिए हम सब श्रद्धा से सरस्वती वंदना प्रस्तुत करते हैं। तो अब मैं सरस्वती वंदना के लिए याशिका और आरोही को मंच पर बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ इनका मंच पर स्वागत करें। या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सा पातु सरस्वती भगवती निशेष जड्यापा। तेरी वीणा की बन जाऊं तार, तेरी वीणा की बन जाऊं तार, ऐसा दे मुझको माँ वरदान, तेरी वीणा की बन जाऊं तार, ऐसा दे मुझको माँ वरदान। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। And now it's time for our little star. For nursery and UKG class students, please come on the stage. सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक
कुछ ना जानू मैं बस इतना ही जानू। भगवान हर कहीं नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने नाना और नानी को बनाया। कुछ भी रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, कुछ भी रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, कुछ भी रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। दादा और दादी वो नहीं जिनसे हम रोज बात करें, दादा दादी वो है जो भले ही हमसे दूर हो पर हमेशा दिल के पास रहते हैं। कैसी है ये दूरी कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओहो कभी तेरी खुशबू कभी तेरी बातें बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू। मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 शहनाई। रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी। मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी।
Now let's pick the bill. कलाकारों का अभिनंदन करें। Now we are moving to our next performance, Smila and Smila dance. Please come on the stage and give their performance. Please put ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ आसमान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ आसमान, पधारे हैं आज इस मंच पर वे मेहमान, पधारे हैं आज इस मंच पर वे मेहमान, करता हूँ आदर पूर्वक उनको प्रणाम। टुडे आवर चीफ गेस्ट श्री CL ठाकुर जी, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी चंबा and chairman Hill Modern Group of Institution Bhadram, District Chamba, along with him Shri Madan Paryal ji, chairman Nav Prabhat Public School Sirkund, are guest of honor SDO Electricity Koti Subdivision Koti Sri Hansraj Thakur ji, AC Suryavanshi ji, retired principal from Education Department, Captain Bhagat Singh Rathore ji, retired from Indian Army, ex-Pradhan Shri Shakti Prasad ji, ex-serviceman Shri Vajiru Ram ji, ex-police inspector Shri Surinder Jambal ji, Shri Subhas ji, retired from HRDC, Shri Yogaraj Chauhan ji, retired from NHPC as a superintendent, Shri Sanjeev Thakur ji, retired from HPP Himachal Pradesh Police, Shri Jeevan Thakur ji, retired from Indian Army, teaching and non-teaching staff, dear parents and my loving cute children. Today is very important day for all of us because this day shows the child activities throughout the year, be it sports, cultural events or anything else. Even last year's performance of the child in academic. Today the children are going to take many prizes. For this my advance congratulations all of them. Now I am going to say a little bit about today's our chief guest Shri CL Thakur ji, who does not need any identity. He has earned a lot of name in the field of education. Basically, he is from Pangi Valley, presently settled at Bhadram and make a big complex at Bhadram. I don't need to praise him because he has earned his name through his hard work. Presently, he is holding the post of District Secretary Bharatiya Janata Party Chamba. He also runs the Hill Modern Group of Institution in Bhadram. He owns a school up to +2 level. He also has a
state open schooling center, about which he himself will tell you later. Along with this, he also runs private ITI and veterinary pharmacist course. Around 40 students are taking training. Overall, we can say that he is leader in the field of education. Earlier, he had also worked as a social media in charge of Bharatiya Janata Party, Chamba, and so many posts. In ordinary life, he is very simple person, dedicated and ready for service. He is also a good speaker. As I requested him to come as the chief guest, he immediately agreed. It was his greatness and connectivity with the soil. Sir, we all appreciate your achievements from the bottom of our hearts. Now I would definitely like to say something about Madan Baryal ji, chairman of Navprabhat Public School, Sirkund. He also runs a school up to middle standard, and around 40-60 students are taking education from his school. He is also very hard worker and dedicated to his work. I would like to say about my father, retired Captain Bhagat Singh Rathore ji, a founder member of this school, whose contribution always for this school. And we can say that he is everything for this school. Number of dignitaries are present here. It would be very difficult to introduce everyone. But we all believe that they would be definitely heroes in their respective fields. Because this day is a special made for children, so I don't want to obstacle their happiness. But I will definitely say something for their future. जो मैं आज यहाँ पे कह रहा हूँ, और मेरे जो सामने बैठे हुए हैं, उनके सामने तो मुझे लगता है कि सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात है। जो हमारे बीच में आज के चीफ गेस्ट हैं, श्री शियाल ठाकुर जी, इनके बारे में थोड़ा सा मैं और बताऊंगा। ये खुद अपने आपको बताएंगे, लेकिन जो मुकाम एजुकेशन के फील्ड में इन्होंने अभी तक हासिल किया है और अभी भी आगे ये प्रयासरत है, तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में आगे जिनका बोलते हैं ना कि सबसे इन फ्रंट में आई, इनका आप लोग जो है जो इनका इंस्टीट्यूशन सेटअप किया है सर, मैं तो हैरान हूँ। हमारी तो वो कल्पना भी नहीं है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे करके इन्होंने किया है। मैं ये भी कहता हूँ कि इनके साथ हमने जो सर आपके साथ जो 4-5 साल हमने गुजारे हैं सर, 5-6 साल हमने इनके साथ काम किया। किसी कारणवश मैं पॉलिटिक्स में चला गया था सर, और 10 साल हमने, मैं तो ये लगता हूँ कि मुझे बर्बाद कर दिए मैंने पॉलिटिक्स में, क्योंकि अगर वो 10 साल मैंने एजुकेशन की फील्ड में लगाए होते तो आज भी हम कुछ इनसे प्रेरणा लेके कुछ ना कुछ होते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अदर जो स्कूल हैं या जो अदर इंस्टीट्यूशन है, वो जैसे हम जाते हैं ना एक्सपोजर विजिट लेके जाते हैं, लक्ष्मी नारायण टेम्पल जाते हैं हम, तो मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा के तमाम जनता को ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो है ना इनके इंस्टीट्यूशन में एक बार जाइए और देखिए। सर हमारा भी अगर इस बार एजुकेशन टूर हम बनाएंगे वेरी सून, तो हम अपने बच्चों को इनके इंस्टीट्यूशन में लेके जाएंगे। आप देखना कि क्या क्या है, बिल्डिंग ही खत्म ही नहीं होती है। जो बिल्डिंग इन्होंने सेटअप की है, मैं तो बोलता हूँ वो बिल्डिंग ही खत्म नहीं होती है। तो ये हमारे लिए जो है, जैसे हम भी एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है सर। बच्चों का कार्यक्रम है, मैं थोड़ा सा और बोलूँगा, बच्चे जो है देश का भविष्य है सर, ठीक है। तो इसमें जो है इन्हीं बच्चों में से जो है IAS बनेंगे, हमारे HS बनेंगे आगे,
और बहुत सारे देश का नेतृत्व करेंगे, वेदर इट इज पॉलिटिकली, मेडिकली, मतलब बच्चे जो है देश के भविष्य हैं, तो इसमें जो है डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियरिंग भी बनेंगे और बड़े सारे मुकाम जो है ये बच्चे हासिल करते हैं। और बच्चा तो हमारे पास स्कूल में खाली 6 घंटे रहते हैं सर, और रिमेनिंग जो 18 आवर्स होते हैं बच्चा जो है अपने घर में ही रहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को जो अभिभावकगण हैं वो थोड़ा सा बच्चों का ध्यान दें, और जो हम जैसे क्लास में कोई भी काम देते हैं, टीचर काम देते हैं, तो उसको घर में जरूर नोट करें। आप डायरियाँ लगाई हुई है सभी ने, तो उसको चेक करिए कि आज EVS वाली मैडम ने क्या काम दिया, इंग्लिश वाले सर ने क्या काम दिया, या मैथ वाले सर ने क्या काम दिया है, सारी मतलब आपको पता होना। और अगर उसमें आपको लगता है कि कोई टीचर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो आप नोट लिख सकते हैं उसमें, तो आप चेक, क्योंकि ताली जो है एक हाथ से नहीं बजती है सर, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो यदि कोई बच्चा जिंदगी में असफल हो जाता है तो उसको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना बच्चा फेल हो गया, तो फेल का मतलब क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। कोई बात नहीं, फेल हो गया, अगली बार जो है कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे तो जो है बच्चा उसमें जरूर सफल होगा। और अनुशासन के बारे में बोलूँगा, डिसिप्लिन के बारे में बोलूँगा सर। अनुशासन जो वो घर से शुरू होता है। आपको पता है अगर घर का माहौल अच्छा होगा तो बच्चे भी वही चीज़ मतलब वही बच्चे सीखते हैं जो हम घर में उनको देते हैं। स्कूल में तो बच्चा बाद में आता है, पर पहले जो है वो घर का अनुशासन सही होना चाहिए। अनुशासन का पाठ जरूर बताना है। अभी जैसे हाल ही में अभी हमने स्किट की है मोबाइल के ऊपर, एडिक्शन ऑफ मोबाइल, तो उसमें बच्चे देखो आपको किस किस तरह से एक्टिविटी कर रहे थे। तो मोबाइल को मैं नहीं बोलता हूँ कि मोबाइल आपने बिल्कुल ही दूर करना है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल उस बच्चे को उतना ही देना है आपने जितना कि उसको यूज़ है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन, आजकल ऐसा नहीं है, अब जैसे मेरी बेटी भी +2 फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, तो कोई क्वेश्चन जैसे होता है फिजिक्स का फंस गया या केमिस्ट्री का फंस गया, तो बच्चे जो है उससे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पर ये है कि चेकिंग होना चाहिए, चेकिंग के बिना कुछ नहीं है। मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि अभी तो छोटे बच्चे हैं हमारे, लेकिन जो 10+2 के बच्चे हैं उनको मैं यही बोलता हूँ कि अच्छा लक्ष्य, हमेशा अच्छा लक्ष्य जो है आपने साधना है। मतलब ये नहीं कि छोटा लक्ष्य लेके चलना है, बड़े लक्ष्य की अगर और जाएंगे आप तो कुछ ना कुछ तो हासिल कर ही लेंगे। बच्चों में आपने देखा है जो अभी तक प्रोग्राम हुए हैं सर, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इनको हम जिस तरह से निखार रहे हैं बच्चे उसी तरह से कर रहे हैं। अभी तक छोटे बच्चे हैं, लेकिन आपने देखा है कि इन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस की है, तो मुझे लगता है कि बच्चे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमने सर समय समय पर खेल कूद प्रतियोगिता, क्विज कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, डेक्लामेशन, निबंध लेखन, ये सभी प्रकार की जो एक्टिविटियाँ होती है, जैसे इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, ये सारे जो इवेंट्स होते हैं हम ये स्कूल में जो है वो समय समय पर बच्चों को करवाते हैं। और सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल की जो हमारी सबसे बड़ी स्कूल की उपलब्धि है सर, कि बच्चे ने हमारे अंडर 14 चेस टूर्नामेंट में जो है वो डिस्ट्रिक्ट जीत के स्टेट लेवल का प्रतिनिधित्व किया है हमारे स्कूल का। तो इसके लिए जोरदार तालियां तो बनती है। प्रबल ठाकुर क्लास 7th का बच्चा हमारा अंडर 14 में स्टेट लेवल टूर्नामेंट खेल गया है आफ्टर विनिंग द डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, एंड डिस्ट्रिक्ट चंबा गॉट 2nd पोजीशन, रनर अप। तो मैं इन बच्चों को जो है, जो और भी इनकी टीम थी, डिस्ट्रिक्ट चंबा की टीम थी, स्पेशली मैं प्रबल अपने स्कूल के बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में अभी अंडर 14 में है, और ये अगले साल फिर अंडर 14 में ही खेलेगा, क्योंकि अभी इसकी एज छोटी है। तो मेरे बोलने का मतलब है, और इसका ज़्यादा मैं श्रेय जो है इनके पिताजी राकेश ठाकुर जी को देता हूँ, जो कि इनके मेंटर रहे हैं
इस इस अंडर 14 इसमें जिताने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका राकेश ठाकुर जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए। तो पेरेंट्स के बारे में भी जरूर कहूँगा, पेरेंट्स जो है हमारे स्कूल की रीढ़ की हड्डी है, और जिस तरह से आपने हम पे अभी तक विश्वास बनाए रखा है, आप आगे भी निरंतर इस तरह से हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखिए। और जो कमियां अगर आपको लगता है कि इस साल हमें कोई रह गई है, हम निश्चित तौर पर आगे भी इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको पूरा भरोसा दिलवाता हूं कि बच्चे जो हैं आपके यहाँ पे बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं, अच्छा सीख रहे हैं। मैंने पिछले साल भी आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं इस स्कूल को जो है 8th स्टैंडर्ड तक अपग्रेड करवा दूंगा, और मैंने इस साल जो है सर इसको 8 तक अपग्रेड करवा दिया है सर। और वेरी सून वी आर गोइंग टू अपग्रेड दिस स्कूल अप टू 10th लेवल। तो अभी जो है मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे जो आज जिसको बोलते हैं कि एजुकेशन के लीडर हैं ये, इनके हम विचार जरूर सुनेंगे और कुछ ही देर में ये आपको एड्रेस करेंगे। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ, एक बार पुनः सभी का, जितने भी गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच में हैं, उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। पेरेंट्स का धन्यवाद करता हूँ, बच्चों का धन्यवाद करता हूँ, और जो बच्चे इतना शानदार प्रोग्राम कर रहे हैं उनको भी आगे जो रिमेनिंग प्रोग्राम्स हैं हमारे उनकी भी और शुभकामनाएं देता हूं कि और अच्छा करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। कैप्टन भगत सिंह राठौर जी जो इस संस्था के संस्थापक हैं, भाई संजीव जी जो इस संस्था का चेयरमैन है, श्री शक्ति प्रसाद जी जो लंबे समय से पंचायत प्रधान रहे हैं, श्रीमती कल्पना राठौर जी जो इस संस्था के प्रधानाचार्य हैं, सुरेंद्र जम्बाल जी एक्स रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर जी, योगराज चौहान जी रिटायर्ड NHPC से हैं, बजीरू राम जी रिटायर्ड इंडियन आर्मी से, श्री अमरचंद सूर्यवंशी जी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, मेरे साथ आए भाई मदन लाल जी नवप्रभात संस्था के चेयरमैन हैं और भारतीय जनता पार्टी जिला के ये SC मोर्चा के जिला के उपाध्यक्ष हैं, अजय जी, रोहित जी मेरे साथ हैं, और यहाँ डिग्निटी में हमारे SDO इलेक्ट्रिसिटी श्री हंसराज ठाकुर जी हैं, अजय जी हैं, जेई हैं, और सभी अभिभावकगण, सभी विद्यार्थी संस्था में पढ़ने वाले, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से भाई संजीव ठाकुर जी ने, राठौर जी ने इस संस्था को सिंचा है, महज 7 सालों में ये संस्था जो है 8वीं तक की मान्यता प्राप्त हो गई है। ये राजनगर के लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई है इसके लिए। और आप सभी अभिभावकों ने जो अपने बच्चे इस संस्था में डाले हैं, संस्था का नाम ही इन्होंने संस्कार पब्लिक स्कूल रखा है। तो संस्कार का मतलब है कि आपके बच्चों को वो सही शिक्षा, जो बेसिक शिक्षा है, वो इस संस्था में दी जा रही है। हाल ही में जब इस संस्था की 8वीं की मान्यता प्राप्त कर रहे थे भाई संजीव जी, तो इनको लग रहा था कि कितना नॉर्म है, कैसे करना है। तो काफ़ी आगे आज की डेट में जो है सरकार के बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ है, जिसको भी प्राप्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टाफ है। तो इन्होंने मेरे से डिस्कस किया था और इन्होंने सारे कागज़ जब बना लिए, तो जब मान्यता मिली तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। और मैं इनको एक बार फिर से
इस अचीवमेंट के लिए बधाई देता हूँ। और साथ ही जिस प्रकार से इन्होंने इस संस्था को संजोया है, और आपके जो बच्चे हैं राजनगर इस पंचायत के ही नहीं, क्याणी से भी बच्चे आते हैं और भी दूर दूर के बच्चे आएंगे, क्योंकि अगले साल ये गाड़ी भी लगा रहे हैं अपने स्कूल के लिए। और शीघ्र इन्होंने अनाउंस भी कर दिया है कि अगले साल जो है ये संस्थान 10वीं तक की मान्यता प्राप्त करेगा। ऐसे ही इसके लिए मैं इनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि जिस डेडिकेशन से ये दोनों हस्बैंड वाइफ कल्पना जी और संजीव जी लगे हुए हैं, और इनका मेहनती स्टाफ जिस प्रकार से मेहनत कर रहा है, तो उस मेहनत को देख करके लगता है कि ये राजनगर में अपने तरह का ये एक मॉडर्न विद्यालय बन करके कल को लोगों के आगे उदाहरण होगा। और जो स्टाफ है यहाँ का, मुझे पता चला है कि दिन रात मेहनत करते हैं। घर में भी जैसे यहाँ से जो होमवर्क बच्चों के लिए तैयार करके लेते हैं टीचिंग प्रैक्टिस की तरह। और मुझे बताया संजीव जी ने कि हमारे जो बच्चे इस संस्था में पढ़ रहे हैं उनको होमवर्क तक का काम जो है यहाँ से हम करवाते हैं। ट्यूशन ही होती है वो एक तरह की, क्योंकि आज के इस व्यस्त जीवन में माता पिता के पास इतना समय नहीं है। और अगर समय भी है तो जैसे अभी ये बच्चे यहाँ एक अच्छी सी किट दिखा रहे थे कि मोबाइल 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 मोबाइल, तो सब कुछ मोबाइल हो गया है। खाना मोबाइल, सोना मोबाइल, उठना मोबाइल, जागना मोबाइल, चलना मोबाइल। तो मोबाइल का ऐसा ज़माना है। ऐसी बात नहीं है, हम आज 22वीं सदी के में कदम रखे हुए हैं कि मोबाइल के सारे ही दुष्प्रभाव भी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि जब अभिभावक फ़ोन चलाते हैं तो हम बच्चों को डांट देते हैं कि आप मत फ़ोन चलाओ। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आप फ़ोन चला रहे हैं और बच्चा आपको देख रहा है। यदि आपको बच्चे को फ़ोन चलाने से मना करना है तो आपको भी फ़ोन उस वक्त कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि आप अपने बच्चे को 1 घंटा 2 घंटा होमवर्क करवा रहे हैं तो आपके भी स्विच ऑफ होने चाहिए, यदि उस बच्चे के स्विच ऑफ है तो ऐसे में अभिभावकों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, कामना करता हूँ कि आप अपने बच्चों को जब होमवर्क कराते हैं या जब पढ़ने बिठाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको शारीरिक क्रीड़ा, जिस तरह से इन्होंने अभी खेल कूद प्रतियोगिता के बारे में बताया कि स्टेट लेवल तक इनके बच्चे के हैं, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ कि ये एक सर्वांगीण विकास की बात होती है बच्चों के अंदर कि कैसे सर्वांगीण विकास कैसे करेंगे। कंप्यूटर से लेकर के किताबी, ऐसे नहीं कि किताबों से ही पढ़कर आपका बच्चा इंटेलिजेंट बन जाएगा कि 90% ले लिए, 95% ले लिए, 98% ले लिए तो आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो गया। ऐसा नहीं है, उसके अंदर सारे के सारे गुण होने चाहिए। सुबह कितने बजे उठता है, जागता है, फिर अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बात करते हैं, पेरेंट्स उसके साथ कैसे बात करते हैं, दादा दादी के साथ कैसे बात करते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ इन्होंने प्रिपरेशन करवाई है कि माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ बच्चा कैसा रहे, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही करता है। बोलते हैं जिस तरह से जो दिखता है वही दिखता है। तो बच्चे भी हमें देखते हैं कि अगर हम लेट उठ रहे हैं तो बच्चे भी लेट उठेंगे। हम अगर पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं बच्चों को तो वही पढ़ने में ध्यान लगाएंगे। तो बच्चे हमारा देश का भविष्य ही नहीं है, हमारे खानदान का भी भविष्य है कि जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा दादी जो पीछे 4-4 7-7 पीढ़ियों ने जो एक संस्कार संजो के रखे कि आगे चल करके हमारा पोता क्या करेगा, हमारी पोती क्या करेगी, हमारा बेटा क्या करेगा, बेटी क्या करेगी, उसके अंदर जो संस्कारों का होना बहुत ज़रूरी है। वो ये स्कूल जो है परफेक्ट जो है इन चीज़ों को करवा रहा है। इसके लिए मैं एक बार फिर से आपको बधाई देता हूँ। और जिस प्रकार से मैं मोबाइल की बात कर रहा था, ऐसी ही छोटी छोटी बातें हैं कि अब आप बच्चों को नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। आप बच्चों को बताएंगे ये मेरे आपके दादाजी है, ये दादी जी है, ये आपकी बुआ जी है, ये आपके चाची जी है, चाचा जी है, कैसे करके उनसे बात करें। यदि हम खुद ही उनके आगे उनके लिए क्रिटिसाइज करते हैं तो बच्चा नेचुरली सीखेगा कि हम भी वैसी बात करें। तो जो संस्कार है हमें अपने घर से ही जगाने पड़ेंगे। और पेरेंट्स को, जैसे अब आज की डेट में भ्रष्टाचार का टाइम चला हुआ कि चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, रोजगार के कोई संसाधन नहीं हो रहे हैं, युवा पढ़ भी रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये चीज़ों करने के लिए यदि आपके बच्चा सही पढ़ रहा है, वो कोई सही टेक्निकल कोर्स कर रहा है, वो अपने स्वयं का भी रोजगार अर्जित कर सकता है कि ऐसे नहीं कि जरूरी सरकार पर ही डिपेंड रहेंगे आप। और छोटे बच्चों के लिए क्या होता है कि जैसे आप 50 रुपये घर से देते, ज़बरदस्ती एक रिश्वत का दौर हमारे घर से शुरू हो जाता है। 50 रुपये आपने देने, बच्चे को ज़बरदस्ती उठा करके भेजना है, लेकिन आप वापस शाम को जब बच्चा घर में आता आप कभी नहीं पूछते बेटा आपने 50 रुपये का खाया क्या।
क्या किया उस 20 रुपए का आपने? या 100 रुपए भी देते हैं, जैसे छठी सातवीं बच्चे पढ़ते हैं तो 100 रुपए दे देते हैं, ऐसे कॉलेज में जाते हैं बच्चे 500 भी देते हैं। लेकिन कोई माता पिता अपने घर में बच्चों से नहीं पूछता कि बेटा आपने उस 100 रुपए का क्या किया, आपने उस 50 रुपए का क्या किया। क्योंकि आप लंच भी सुबह माताएं बहनें हमारी उठती है और सुबह ही लंच तैयार कर लेती है। उन्होंने 6 बजे नींद जगानी है, जैसे मेरे 7 बजे 7:30 बजे तक स्कूल की बसें आ जाती है, स्कूल भेजने बच्चे, उनको तैयारी करने के लिए बच्चे को वर्दी प्रेस सारा करना पड़ता है। मैं स्कूल की बात करूंगा क्योंकि स्कूल में आया हूँ। तो उसमें क्या रहता है कि फिर जैसे वो तैयार हो जाता है ब्रेकफास्ट भी दे देते हैं, आप लंच भी साथ में दे देते हैं। वो भी लंच साथ में दे रहे हैं तो फिर आप 50 रुपए का को दे रहे हैं, 100 रुपए क्यों दे रहे हैं? अब चलो ठीक है दे रहे हैं तो वापसी ये पूछो बेटा क्या लाया 50 रुपए का मेरे लिए, आप 100 रुपए क्या लाए? वो माँ भी जानती है, फादर भी जानते हैं, दादा दादी भी जानते हैं। मम्मी नहीं देती तो दादा दादी दे देते हैं, दादा दादी ने तो डैडी दे देते हैं। ऐसा मतलब कि हमारा एक माहौल बढ़ता जाता है और इसको हम भ्रष्टाचार भी बोलते हैं कि रिश्वत शुरू घर से ही शुरू हो गई है। और क्योंकि उस बच्चे ने अब कोई सही चीज़ तो खानी नहीं है, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खाएगा जिस प्रकार से आज बच्चे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। और नशे भी ऐसे बड़े भी उसके नशे हैं कि उन नशों से फिर बचाना मुश्किल है। इसलिए माता पिता से भी मेरा यही अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को पूरा सर्वांगीण विकास के लिए ऐसी संस्था चुनिए जहां इस तरह का जो पूरा का पूरा डेक्रम, चाहे इन्होंने कल्चर एक्टिविटी को छुआ, खेल को, पढ़ाई को, सारा का सारा इस संस्था ने पूरा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं सभी राजनगर वासियों को कि इस स्कूल पर आपने ऐसा इसलिए भी विश्वास करना क्योंकि ये भाई 7 साल तक हमारी संस्था में रहे और एज ए प्रिंसिपल रहे। आज जो संस्था इन्होंने हमारी प्रेज की या हमारे बारे में बताया कि हम बड़े मुकाम पर है, तो ये सब मेरे दोस्त थे, 7-8 लोग थे, सब ने अपनी इच्छा जाहिर की कि हमने अपना स्कूल चलाना है। और मुझे बड़ी खुशी थी कि बिल्कुल गो अहेड, खोलो, करो, आप सर्व करो। तो वो एक हमारे को बहुत ज़्यादा खुशी रहती है कि संजीव राठौर ने भी राजनगर में आकर के अपना स्कूल शुरू किया। चाहे उन्होंने कहा कि मैंने अपने 10 साल खराब किए राजनीति में, वो भी एक दौर होता है क्योंकि जब कुछ लोग ऐसे समाज में लग जाते हैं कि आप नेता बन जाओ, फिर बनाते नहीं है कई बार, तो वैसे टाइम खराब भी हो जाता है। तो वैसे भी उसमें कोई वो नहीं, लेकिन उससे भी इन्होंने सीखा कि वापस आए ये कि मुझे जो है ना करना ही समाज के लिए। तो समाज के लिए करना, तो देखो आज की डेट में पब्लिक स्कूल खोलना बहुत बड़ी बात है। एक तरफ टैलेंट चाहिए होता है, एक तरफ पैसा चाहिए होता है, एक तरफ सरकार के इतने नॉर्म हैं उनको पूरा करते करते ये मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 39 डॉक्यूमेंट्स पूरे करने पड़ते हैं, तब जाके मान्यता मिलती है। नहीं तो जो चारों तरफ वो देखने वाले होते हैं, जो विरोधी होते हैं, वो तालियां बजाते हैं कि वाह वाह अब ऐसा हुआ। लेकिन मैं आपको एक बार फिर बार बार बधाई देता हूँ कि 8वीं तक मान्यता आपने कितने स्ट्रगल से प्राप्त की है। ये स्ट्रगल आगे चल करके आपको याद रहेगा जब आप 10वीं की मान्यता लेंगे, 12वीं की लेंगे। और राजनगर का जो बच्चों का भविष्य आप जिस प्रकार से बना रहे हैं, ऐसे जब आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके हाथ आएगी सर। और मैं आपको फिर विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ सभी अभिभावकों को, इनके सौजन्य से, संजीव राठौर जी और कल्पना राठौर जी के से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये दोनों जो है पढ़े लिखे हैं, MA B.Ed है, M.Ed भी है। और इन लोगों ने जो इस एजुकेशन के स्तर को उठाया हुआ, इसके लिए मैं पूरे राजनगर को बधाई देता हूँ कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो मैनेजमेंट भी कर रहा है और पढ़ा भी रहा है और प्रिंसिपल भी है, तो आपके बच्चों को भविष्य कितना उज्जवल है। तो जैसे बच्चों को ये सिखाते हैं, हम भी कभी इनसे बात करते थे, कहते हैं ठाकुर साहब कैसे करेंगे आप, तो मैं इनको एक ही बात बोलता था, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी संभव नहीं है, हम कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? सिर्फ अपनी मेहनत के द्वारा करेंगे। तो इन्होंने भी दिन रात मेहनत की है। तो मेहनत किसके लिए की है? आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं। सुबह जब बच्चे आपके पास इनके पास आते हैं, 6 घंटे इन्होंने कहा हमारे पास रहते हैं। उसके बाद आपको मैंने बात बता दी कि घर में जब आप पढ़ाई का माहौल बनाते हैं तो थोड़ा सा उनको पूरा का पूरा आपने संजोना पड़ेगा। और इस स्कूल का बहुत बड़ा भविष्य है। ये जो स्कूल आने वाले दिनों में राजनगर में +2 तक मान्यता प्राप्त दिखेगा आपको। बहुत जल्दी ये जो है 10वीं तक मान्यता कर रहे हैं। सभी राजनगर के वासियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए
क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया हुआ कि हमने पढ़ाने ही बच्चे हैं। मैं काफ़ी समय से इनको जानता हूँ कि इन्होंने बस दृढ़ ले लिया, निश्चय कर लिया कि मैंने जो है राजनगर के भले के लिए ही सोचना है। ऐसे ये कहीं ना कहीं नौकरी भी कर सकते हैं, कहीं और जगह कंपनी में भी जा सकते हैं। आजकल बहुत सारी कंपनियां बड़ी बड़ी, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, अपनी ही बिल्डिंग बना करके अपना ही करके सब कुछ। और अभी मेरे को उन्होंने बताया भी कि हम जो है यहाँ एडमिशन फीस भी नहीं लेते हैं। इसके लिए भी आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि स्कूलों में आज की डेट में 15-15, 20-20 हज़ार जो है एडमिशन फीस ही होता नर्सरी LKG में। जब ये एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं तो, और सिर्फ मंथली फीस आपसे ले रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपका बच्चे का जो हर साल का 15-15, 20-20 हज़ार एडमिशन के दौर पर बचा हुआ वो आप अपने बच्चे के नाम से कल को उसके हायर एजुकेशन के लिए रख सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये जिस तरह से राठौर साहब इस स्कूल को चला रहे हैं, इन्होंने अभी मुझे बताया कि अभी मैं इसको एकेडमी के तौर पर भी शुरू करूँगा, जिसमें कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोचिंग भी दी जाएगी। तो इसके लिए भी आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं ज़्यादा ना आपका समय लेता हुआ आप सभी राजनगर वासियों को और संस्कार पब्लिक स्कूल के सभी मैनेजमेंट को, सभी अध्यापकों को बधाई देता हूँ एक बार फिर से कि जिस प्रकार से आप इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपने बच्चों को भविष्य बना रहे हैं। और इन बच्चों के लिए आप जो लगातार घर से नोट्स बना के ला रहे हैं, जो प्रिंसिपल आपके इतने इंटेलिजेंट है, चेयरमैन है, तो ये स्कूल मुझे भविष्य में लगता है कि दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेगा। और एक बार फिर सभी बच्चों को भी मैं बधाई देता हूँ जिन्होंने इतने अच्छा प्रोग्राम किया, और सभी मैनेजमेंट को भी मैं बधाई देता हूँ, आपने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और मुझ जैसे इंसान को इन्होंने इतना बड़ा वो बना दिया। क्योंकि हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं और कुछ नहीं। हमने जब घर छोड़ा था, अपने बारे में तो कुछ बताऊँगा नहीं ऐसे, फिर भी आप इनको सारा इन्होंने बता दिया कि जब हमने घर छोड़ा था तो हम एक जोड़ कपड़े में चंबा आए थे सिर्फ, और हमें नहीं था पता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। बचपन में ही हमारे फादर नहीं रहे, तो माँ ने हमारे जैसे कैसे पढ़ा करके पहुँचाया। आगे हमें जीवन साथी भी अच्छा मिला और हम लगातार मेहनत करते गए। सब ने सपोर्ट किया, इन दोस्तों ने भी सपोर्ट किया। तो आज नंबर 1 हम संस्था अगर चंबा में कहलाती है तो सिर्फ हम अपने डिसिप्लिन और अनुशासन के वजह से कमाते हैं। उन सभी को अध्यापकों का हम कोटि और उन सभी पेरेंट्स का कोटि धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमें चंबा में आशीर्वाद दिया। और इतने 600 किलोमीटर दूर से आने के बाद ये संस्था को कामयाब करने में मुझे सब माता बहनों ने, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। तो हम दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहे हैं और उनके बच्चों के भविष्य के लिए हम नई नई योजनाएं ला रहे हैं और नए नए कोर्स ला रहे हैं ताकि चंबा से बाहर ना जाना पड़े। कोई समय था, आपको भी पता है, कि हम छोटी सी ट्रेनिंग के लिए भी बाहर जाते थे। आज ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग्स है हमारे पास, वेटनरी फार्मासिस्ट का, ITI का है, स्कूल +2 तक है, अन्य भी कोर्स हमने अभी डिजाइन किए नए सत्र के लिए। तो ये हम जो है इस संस्था के माध्यम से कर रहे हैं। और ये जितने भी यहाँ पर अभिभावक हैं, बच्चे, मैं आप सभी को बधाई देता हूँ कि आपके बच्चों को आप खुद देख रहे हैं कि आपके बच्चों का कितना टैलेंट है। ऐसे जो परफॉर्मेंस यहाँ दी जा रही थी, ऐसे मैं अभी सर से बात कर रहा था कि लाइव करना बड़ा भारी मुश्किल है। ऐसे तो जब आपको पता कोई फिल्म, हम नाटक देखते हैं, सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, 1000 बार रीटेक किया होता उसको, अभी ऐसे हो जाओ, अभी ऐसे हो जाओ। लेकिन लाइव परफॉर्मेंस करना, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कितना आगे बढ़ाया होगा इन्होंने। जब किसी बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल आगे बढ़ता है तो वो कॉन्फिडेंस लेवल सबसे पहले उनके अध्यापकों का होता है, फिर वो उनके पेरेंट्स का होता है, तब जाके ये इस लेवल के कार्य किए जाते हैं। अभी 8वीं तक इनकी मान्यता मिली है और 8वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते अगर ये इस तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर ला सकते हैं तो आगे हायर क्लासेस में इनका लेवल शिक्षा का कितना बड़ा होगा। तो मैं आप सभी को एक बार फिर बधाई देता हूं और भविष्य के लिए कामना करता हूं कि सभी राजनगर के वासी इस संस्था में विजिट करें और अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए संस्कार पब्लिक स्कूल को चुनें। एक बार फिर से भाई राठौर जी का, इनकी पूरी फैमिली का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और सभी स्टाफ और बच्चों का जिन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया, यहाँ बुलाया, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू
sir. I wish to Happy New Year 2026. आज के आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि श्री CL ठाकुर जी, सचिव भारतीय जनता पार्टी चंबा व चेयरमैन हिल मॉडर्न ग्रुप इंस्टीट्यूशन एंड सभी गणमान्य व्यक्ति जो इस पंडाल में उपस्थित हैं, अभिभावकगण, स्कूल स्टाफ और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को सालाना जश्न की मुबारकबाद देता हूँ। जो भी प्रस्तुति हमारे बच्चों द्वारा की गई और आगे आएगी वो सभी अच्छी ही होगी, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं वो जनजातीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं। उन्होंने काफ़ी मेहनत और दिमाग से बहुत कम समय में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की है, हासिल कर रखी है। हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे के लिए भी प्रयासरत हैं, वो आगे बढ़े। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। जहाँ तक इस स्कूल की बात है, ये अपने प्रयासों से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। इस साल 5th क्लास से अपग्रेड होकर 8th तक हो गया है। इसके लिए मैं स्कूल स्टाफ और स्कूल प्रबंधन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि वो बच्चों का प्रोग्राम है और भी प्रोग्राम बाकी है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए उन्हें सभी को बधाई देता हूँ। ये स्कूल दिन दूनी और रात चौगुनी उनकी करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए जोरदार तालियां एक बार सर के। To our students. Now I will call the children one by one. All the children should come one by one and take their prizes. And second, Anshvi Sharma, 2nd class, got 1st position. Prabal Thakur, essay writing competition. Jatin, class, got 1st position. And Krivi Thakur, for class 1st, got 1st position. Krivi Thakur, class 3rd, got 1st position. Class 6th got 1st position. Class got 1st position. Jivanshi Thakur, Sarve Thakur got 1st position. Rivanshi Thakur 1st position. This 3rd, 4th and 5th. Vaibhav Thakur, class 3rd, got Grivi Thakur, class 3rd, got 2nd position. Vaibhav Thakur, class 3rd, got 1st position. Grivi Thakur, class 3rd, 2nd position. Rangoli competition, Prabal Thakur got 1st position. Quiz competition. Team was Team B. Grivi, Chirag and Nursery class Jivanshi Thakur. UKG class Ayush Thakur. Ayush Thakur. Class 3rd. Shivansh Rajput. Maximum attendance award for nursery class. Maximum attendance award. LK Thakur. UKG class Shivansh Thakur. 2nd
Sixth class, Gaurav. Chess competition, winner was Yashika, sixth class Yashika. Spoon race for classes nursery and LK got first position. Jivanshi Thakur. Spoon race for UKG class. Bhar class got second position. UKG class Bharti. Smaira Thakur, daughter of Shri Vijay Kumar, got first position. Four classes, third to fourth. Ambyal got first position. Piyush Kotwal got second position. Ambyal got first position. Piyush Kotwal got second position. Simple race for classes nursery and LKG. Yakshur got second position. Sangram Singh, Yakshita and Jivanshi Thakur got first position. Got first position. Krishnam Thakur and Deepak Kumar got first position. Rahima and Sangram Singh got second position. Got first position. Four classes, third, fourth and fifth. Divanshik Thakur and Vaibhav got first position. Divanshik Thakur and Vaibhav. First position, Smaira Thakur, daughter of four classes, third, fourth and fifth. Divanshik Thakur. Four classes, six. Gaurav got second position. Winner was Divanshik Thakur, class third. And take their prizes also. Firstly, I would like to call Nandini ma'am. And not पास ही रखते, हम आपको सुबह प्रेयर में दे देंगे. Classes, all boys and girls, nursery, LKG and UKG. सभी का सभी को मिलेगी. गरबा डांस के हाथ लगाओ सभी. बेटा सामने देखो जरा किड वाले बच्चे. हीना सोलो डांस. हीना सोलो डांस. उसके बाद पहाड़ी डांस ग्रुप यूकेजी एंड
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे